Hello students and welcome to your English language class. Today in this class we'll be reading about a very beautiful hill station situated in Karnataka, and the name of this place is Coorg, and we'll be reading it in Glimpses of India, and this write-up has been written by Lokesh Abral. So, contrary to the present day digital world of fast paced internet, bullet trains, high rise buildings, machines, and corporate culture, the author introduces us to the serene and soulful natural landscapes of a heavenly place called Coorg, which is not mythical but still exists just miles away from us and yet remains pure and untouched. And we witness bounties of natural components like hills, rivers, splashes of pools, trees, rainforests, valleys, mountains, and plenty of wildlife comprising of wild elephants, squirrels, langurs, kingfishers, and whatnot. So, all in all, the theme of nature is woven throughout the narrative, and the reader feels like visiting the place as and when he gets some time from his everyday routine and business. So let us start reading from the text. Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spices. So Coorg is basically famous for coffee plantation and for its rainforest, evergreen rainforest, and a variety of spices that are produced there. So, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. So, it is believed that this place has been separated from the kingdom of God. So, it is so beautiful and so serene that people actually believe that it must have been a part of the kingdom of God. And where it is situated, it is midway between Mysore and coastal town of Mangalore. This land of rolling hills. Now, rolling hills means rising and falling hills. अगर आप हिल स्टेशन गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हिल्स हैं वो क्या होता है, ऊपर नीचे की तरफ जाती रहती हैं. सो दे आर ऑलवेज राइजिंग एंड फॉलिंग. सो ऐसे स्ट्रेट नहीं होती हैं, एक लेवल पे नहीं होती हैं. दे आर ऑलवेज अप एंड डाउन. The land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men. Martial men means warriors. So they are inhabited by a proud race of warriors, beautiful women and wild creatures. So a race of warriors, beautiful women and wild creatures have inhabited this place. So they are living here for ages. Now, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, इसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कोडगू भी बोलते हैं. So, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. So, you must have read in geography what evergreen rainforests are. So they never shed their leaves throughout the year. So the trees are evergreen, so that means they never shed their leaves. The trees don't shed their leaves throughout the year and they remain green. And the evergreen rainforest covers almost 30% of this district. So you can imagine the kind of greenery it must be having. Now during the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. अब जब मानसून स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे इतनी बारिश होती है जिसकी वजह से जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, दे प्रेफर नॉट टू विजिट कूर्ग. The season of joy commences from September and continues till March. The season of joy means the suitable time to visit Coorg starts from September onwards and it continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. बारिश तब भी होती है लेकिन बहुत limited amount में. Okay. The air breathes of invigorating coffee.
और कॉफ़ी की बड़ी ही अच्छी प्लेजेंट सी एक फ्लेवर जो है वो पूरा हवा में आपको मिल जाएगा. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies. कैनपी क्या होता है बेटा? कैनपी जैसे आप अगर शादियों में जाते हो तो वहाँ पे शामियाना लगा होता है, एक टेंट टाइप का लगा होता है. तो वहाँ पे जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ना, वो ऐसे एकदम कैनपी टाइप बना लेते हैं, एक शेड टाइप का बना लेते हैं, एक रूफ लाइक कवरिंग बना लेते हैं. ठीक है. So, coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. तो वहाँ पे जो ट्री कैनोपीज़ हैं उनकी शेड में बहुत सारे कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज, जो बहुत पुराने कॉलोनियल टाइम के बंगलोज हैं, दे आर स्टैंडिंग देयर. टग्ड मतलब उनके नीचे. ठीक है. सो दे आर टग्ड अंडर दीज ट्री कैनोपीज़ इन प्राइम कॉर्नर्स, means places of special importance. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. अब ये माना जाता है कि जो वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं कूर्ग में, they are probably and quite possibly they are of Greek or Arabic descent. कि उनकी जो शुरुआत है, ठीक है, जो ओरिजिन है उनका, वो कहाँ का है? या तो ग्रीस का है या फिर अरब का है. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. और एक पुरानी लोक कथा के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक आर्मी का छोटा सा टुकड़ा जो है वो साउथ की तरफ गया था और फिर वहीं पर सेटल हो गया, बिकॉज उनका जो रिटर्न था, उनकी वापसी जो है, दैट वाज impractical, that was practically not possible, so they decided to settle down there only. And these people married amongst the locals, और ये जो foreigners थे, foreign invaders थे, they settled over there and they got married to the localites, जो वहाँ की local women folk थी, उनके साथ इनकी शादियाँ हुई और फिर उन्होंने क्या किया, वहीं पर ही बस गए. और अब जो जनरेशन है तो वो कहीं ना कहीं से अलेक्जेंडर की आर्मी से रिलेटेड है. ओके. एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, और उनका जो कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं शोकेस करता है उनके मार्शियल और या कह सकते हैं वॉरियर ट्रेडिशन को, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स. और आपको हर ट्रेडिशन में, हर कस्टम में आपको कहीं ना कहीं वो झलक ज़रूर दिखाई देगी दैट दे बिलोंग टू अ वॉरियर फैमिली, या एक वॉरियर बैकग्राउंड उनका है. ओके. विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. एक्चुअली जो इंडियंस हैं वो तो अपने जो हिंदू हमारे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, वही फॉलो करेंगे, लेकिन जब आप कूर्ग जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो उनके मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं और बाकी जितने ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं, दे हैव अ मिक्सचर ऑफ ग्रीक एंड अरबिक पीपल इन देम. ठीक है. वहाँ की सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं. So the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kupia. अब जो इनका अरब डिसेंट है, जो लोग कहते हैं कि नहीं इनका अरब ओरिजिन भी है, वो कैसे उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं या कैसे अपनी बात को प्रूव करते हैं. वो कहते हैं कि जो ये लॉन्ग कोट पहना जाता है, कूर्ग के जो नेटिव्स हैं वो जो ये लॉन्ग कोट पहनते हैं, बेसिकली ये कहाँ से आया है? ये अरब से आया है, सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज़ से आया है. ओके. और इस लॉन्ग कोट को कुपिया भी कहते हैं. इट रिसेंबल्स द कफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स. और ये इस तरीके की जो ड्रेस है, ये जो लॉन्ग कोट है, ये बेसिकली अरब ज़्यादा पहनते हैं. सो दे ट्राई टू रिलेट बोथ दीज कोट्स एंड दे से दैट दे हैव गॉट समथिंग टू डू विद द अरब्स, कि वहाँ से कहीं ना कहीं दीज टू आर रिलेटेड.
Now, Coorgi homes have a tradition of hospitality. Hospitality means when you welcome and greet and you entertain your guests very warmly. So they have this tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Tales of valor means अपने जो करेज की स्टोरीज़ हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा कोई महान काम किया है, या अपनी ब्रेवरी को जब वो पोर्ट्रे करते हैं थ्रू देयर फोक टेल्स, ठीक है, तो वो अपने बेटों की, अपने फादर की कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज़ ज़रूर नरेट करते हैं. द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. सो डेकोरेटेड मीन्स दे आर अडॉर्न्ड विद अट्रैक्टिव आइटम्स. जो आप उनकी यूनिफॉर्म देखोगे कूर्ग रेजिमेंट की इंडियन आर्मी में, सो दैट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिफॉर्म. ओके, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी. और जो इंडिया के सबसे पहले चीफ थे, ठीक है, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, ही वॉज ऑल्सो अ कूर्गी. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. And you must be knowing that if you've got to keep a firearm, means if you've got to keep a pistol or gun with you for self-defense, then you need a license. ठीक है, इंडिया में अगर आपको कोई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन रखनी है, या कोई पिस्टल अगर आप कैरी करना चाहते हो, या कोई भी इस तरीके का वेपन आप कैरी करना चाहते हो, तो आपको पहले एक लाइसेंस लेना होता है. लेकिन कोडवूज जो हैं वो सिर्फ ऐसे लोग हैं इंडिया में जो विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं. दे डोंट नीड अ लाइसेंस. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग. जो रिवर है कावेरी, आपने नाम सुना होगा ऑब्वियसली. तो इसका पानी कहाँ से आता है? इसका पानी जो हिल्स और फॉरेस्ट हैं कूर्ग के, वहाँ से आता है. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अबाउंड इन दीज वाटर्स. और यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश भी की स्पीशीज़ पाई जाती है वहाँ पे, उसका नाम है महासीर. Now kingfishers dive for their catch. किंगफिशर आपने बर्ड देखी होगी, वो कैसे फिश पानी में ऐसे फिश को कैच करती है. ओके, so while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash. और जो लंगूर और स्क्विरल्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रूट को खाते हैं और फिर शैतानी करने के लिए, और उसको जो क्लियर वाटर है उसमें उनको फेंक देते हैं, जस्ट टू एन्जॉय द स्प्लैश. कि जब वो फ्रूट, हाफ ईटन फ्रूट जब उस पानी में गिरेगा तो इट विल मेक अ साउंड ऑफ स्प्लैश एंड इट विल हैव द रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट आपको पता होगा, जैसे लहरें बनती हैं जब किसी स्टैंडिंग वाटर में, अगर आप क्लियर वाटर में अगर आप कोई चीज़ फेंको, कोई पेबल या पत्थर कोई छोटा सा फेंको, तो क्या होता है, एकदम लहरें बनना शुरू हो जाती है ना. दैट इज़ द रिपल इफेक्ट. So elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahawats. महावत कौन होते हैं? जो look after करते हैं, और basically he is the person who rides, controls and tends or look after an elephant. ठीक है, तो महावत जो हैं वो river में उनको elephants को they gave them a bath and scrub them. The most laid back individuals become converts to the life of हाई एनर्जी एडवेंचर्स. और जितने भी यूजुअली जितने लेज़ी लोग होते हैं, लेज़ी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो भी वहाँ जाके कूर्ग जाके बहुत ही हाई स्पिरिटेड एडवेंचरस सॉर्ट ऑफ पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं. विद रिवर राफ्टिंग. रिवर राफ्टिंग आपको पता होगा, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट. एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि वुडन प्लैंक्स को जोड़कर बनाया जाता है, और उससे आप रिवर राफ्टिंग करते हो. तो कनोइंग एक नैरो बोट जो होती है उस पर आप रिवर में ट्रैवल करते हो. या रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप. ये सारे इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स वहाँ पर कराए जाते हैं. ठीक है, इवन फॉर द नॉन प्रोफेशनल्स और द बिगिनर्स. उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है. सो वहाँ पे आपको इस तरीके के गाइड्स मिल जाते हैं, और
ऐसे लोग होते हैं जो आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं और आपको सिखाते भी हैं. दे फर्स्ट ट्रेन यू ऑल्सो. रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. ठीक है, तो ये भी इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स वहाँ पे करने को मिलेंगे इफ़ यू गो देयर. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स. वॉकिंग ट्रेल्स क्या होता है, जब आप दीज आर नॉट द एक्चुअल पाथ. ठीक है, जब ट्रैकर्स बार बार किसी ऐसे रास्ते पे जाते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है. ठीक है, पैरों के फुटस्टेप्स की वजह से वहाँ पे ऐसे रास्ते बन जाते हैं. सो दीज आर नोन एज द ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स. और ट्रैकर्स जो हैं फिर इन्हीं ट्रेल्स को फॉलो करते हुए ट्रैकिंग करते हैं. ना बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. मैकैक्स, मैकैक्स कौन होते हैं बेटा, आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़. ठीक है, बेसिकली मंकीज़ ही होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं. एंड मलाबार स्क्विरल्स, स्क्विरल्स आपको पता होगा, गिलहरियाँ जो होती हैं. लंगूर भी पता होंगे. ठीक है, जो एक लॉन्ग टेल वाले मंकीज़ होते हैं विद द ब्लैक कलर्ड माउथ, फेस जो है उनका वो ब्लैक कलर्ड होता है. एंड स्लेंडर लॉरिस, लॉरिस इज अगेन प्राइमेट्स, आपके बंदरों के जैसे ही होते हैं. दे कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. और वो पेड़ों के ऊपर चढ़ के वहाँ से दे कीप अ वॉचफुल आई, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हु इज़ कमिंग एंड हु इज़ गोइंग. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. एंड ऑब्वियसली जब वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं तो you've got to give them side, otherwise क्या होगा, they'll step on you, right? The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view. Panoramic view means a wide angled view. ठीक है, of the entire misty means foggy landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisarg Dham. Running into Buddhist monks. बुद्धिस्ट मॉन्क्स कौन से होते हैं, आपने देखे होंगे, जो हर्मिट्स होते हैं या सेज आप कह सकते हो. ठीक है, डिवोटीज़ होते हैं, बेसिकली बुद्धिस्ट डिवोटीज़, जो हमेशा प्रेयर करते हुए नज़र आएंगे आपको. जो मॉनेस्ट्री होती है उनमें प्रेयर करते हुए नज़र आएंगे. फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलेकुपी इज़ अ बोनस. द मॉन्क्स इन रेड ओकर. ओकर क्या होता है, एक डार्क येलोइश ऑरेंज कलर का, बेसिकली कलर का नाम होता है ओकर. एंड येलो रोब्स, रोब्स मतलब जो उनका अटायर होता है, जिस टाइप की वो ड्रेस पहनते हैं. आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग. सो आपको बहुत सारा सरप्राइज पैकेज मिलेगा इफ़ यू एवर गॉट अ चांस टू विजिट कूर्ग, एंड you must definitely visit it once in your lifetime. So this was all about Coorg. I hope you've enjoyed listening to it, and here's your homework. You have to write a short summary of this chapter and do the question answers in your fair notebook and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.